Good afternoon, students. I am Dr. Sonia Tiwari, Associate Professor from the Department of Community Medicine, Arvindo Medical College, Indore. Today we will do chapter Nutrition and Health from the textbook of Park. I think we'll cover this chapter in 2 or 3 simultaneous parts. So without any delay, I would like to start with the chapter. First of all, what is nutrition? So nutrition is defined as the study of science of food and its relationship to health. It is concerned primarily with the part played by the nutrients in the body growth, development and the maintenance. Now, what is nutrient? It is the term used for specific dietary constituents such as the proteins, your fats, your vitamins and your minerals. What is the term dietetics means? Dietetics means the practical application of the principles of nutrition. It includes the planning of meals for well as the sick. Then the subject of nutrition, it is very extensive, as we all know that. So we deal our topic with the community aspects of the nutrition, which will include the dietary constituents, the nutritional requirements. Then we will cover the assessment of nutritional status in the community, then what are the nutritional problems in the public health, and what are the various nutritional programs in India which are running. Now, before going into the detail of the chapter and covering simultaneous topics one by one, we'll just see a short history or the changing concepts which were there in nutrition. Through centuries, food has been recognized as important for human beings in health as well as in disease. The history of man to a large extent has been a struggle to obtain food. Proteins, carbohydrates, fats, they have been recognized early in the 19th century as energy yielding foods, right? And much attention was paid to their metabolism and contribution to energy requirements. The discovery of vitamins at the turn of present century has rediscovered the science of nutrition. By about 1950s, presently known vitamins and essential amino acids. Nutrition gained recognition as a scientific discipline with roots in physiology as well as in biochemistry. During the past 50s, great advances has been made in the subject of nutrition and its application. Specific nutritional diseases were identified and the technologies were developed to control them. As per example, PEM, endemic goiter, nutritional anemia and nutritional blindness. Now, science of nutrition. In this slide, what are things we are seeing is that the science of nutrition extending its influence into the other fields like agriculture, the economics, animal husbandry, sociology. This led to green and white revolution in India. Then international activities in the field of nutrition, they were also initiated by the League of Nations and continued by WHO and UNICEF. Then significant advances has been made in the past 2 decades. The association of nutrition with infection, immunity, fertility, maternal and child health and family health have engaged scientific attention. More recently, great deal of interest has been focused on the role of dietary factors in the pathogenesis of NCDs, like you have chronic heart disease, you have diabetes, you have cancer and various others. Now, of greater significance, during the recent years, the science of nutrition has moved out of the laboratory and linked itself to the epidemiology. The association has given birth to newer concepts in nutrition, such as you can see the epidemiological assessment of the nutritional status of the community, the nutrition and the dietary surveys, nutritional surveillance, nutritional and the growth monitoring, nutritional rehabilitation and various other nutritional indicators.
Then we are coming to the main part, that is the classification of the various food items as given in your textbook of PAK. They are classified in many ways. As you can see here, the first classification is by the origin, that is whether the food is of animal origin or whether it is of the vegetable origin. Then you have classification according to the chemical composition, that is which includes your proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals. Then you have, we are going to cover all these, right, one by one in each class. Then classification by predominant function. You have bodybuilding foods, then which includes the milk, meat, poultry, fish, eggs, pulses and the groundnuts. You have energy giving foods, that is the cereals, the sugars, the roots, the tubers, the fats and the oil. And last is the classification by the nutritive value. In that you have the cereals and the millets, the pulses, vegetables, fruits, nuts and oil seeds, then animal foods, fats and oils, sugars, jaggery and various other spices, right? Now starting with the fats. Now everybody knows that in Greek, the lipos means fat. Lipids may be regarded as organic substances relatively insoluble in the water, soluble in the organic solvents, potentially related to fatty acids and utilized by the living cells. Then they are not polymers, they are usually smaller molecules. They constitute about 15 to 20 of the body weight. Now what is the classification of the fats? Based on the modified Blurer's classification, it is classified in simple lipids, the compound lipids, the derived lipids and the miscellaneous lipids. Now what are the simple lipids, right? Simple lipids are what? They are fats and oils, that is the triacyl glycerols. The esters of fatty acid with the glycerol, difference is physical. Then number 2 is the waxes, that is the esters of fatty acid with alcohol other than the glycerol and acetyl alcohol. Can you make the difference? Simple lipids, इसमें fats और oils आते हैं, ठीक है, they are triacyl glycerols. और waxes की बात करेंगे तो they are other than those, right? They are other than the your glycerols. Then we come to the compound lipids. Additional groups such as the phosphate, nitrogenous base, the carbohydrates, the proteins, etc. Now in the compound lipids you have phospholipid, you have glycolipid, you have lipoprotein and other complex lipids, right? तो phospholipid का example देखेंगे तो it includes glycerophospholipid and sphingophospholipid. थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे तो ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में, तो याद आएगा. ग्लाइकोलिपिड मतलब सेरिब्रोसाइट्स, लाइपोप्रोटीन्स, और कॉम्प्लेक्स वाले की बात करेंगे तो इसमें आता है अमाइनोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स. ठीक है, फिर से बोल रही हूँ मैं एक बार. कंपाउंड लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स आ गए, फॉस्फोलिपिड्स में फिर 2 आ गए, एक हो गया ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ठीक है, और एक हो गया स्फिंगोफॉस्फोलिपिड. ग्लाइकोलिपिड में एग्जाम्पल हो गया सेरिब्रोसाइट्स, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, और अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड जो कि कंपाउंड लिपिड्स में ही आते हैं तो है सल्फोलिपिड्स एंड अमाइनो लिपिड्स. फिर तीसरे नंबर पे आता है डिराइव लिपिड्स. ठीक है, डिराइव मतलब क्या हुआ, कहीं से आ रहा है, तो इट इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स. सिंपल और कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आएगा डिराइव्ड, उसमें से कुछ नया आएगा. ठीक है, ग्लिसरॉल हो गया, मोनो एंड डायसाइल ग्लिसरॉल्स, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स हो गए, स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए, कीटोन बॉडीज़ हो गए, और हाइड्रोकार्बन्स हो गए. फिर हम बात करेंगे मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस में कंपाउंड्स पजेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिपिड, मतलब कि कहीं सिंपल नहीं है, कंपाउंड नहीं है, डिराइव भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर उसके लिपिड जैसे हैं, इसलिए उसका नाम हो गया मिसलेनियस लिपिड्स. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे कैरोटीनॉइड्स हो गया, स्क्वैलिन हो गया, पेंटोकोसेन हो गया, ठीक है, एंड टर्पीन्स हो गया. ठीक है, तो 4 कैटेगरीज हो गई, सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड एंड मिसलेनियस. फिर हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की. तो फैट्स यील्ड फैटी एसिड्स एंड द
ग्लिसरॉल। फैट से ही निकलता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स नाउ। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सबको पता है ये, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में फिर म्यूफा एंड प्यूफा सुना होगा। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हैं ये देख लेते हैं। नो डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं रहेगा और मेनली ये रहेगा एनिमल फैट, ठीक है। ब्यूट्रिक एसिड मतलब बटर हो गया, ठीक है। लॉरिक एसिड ब्रेस्ट मिल्क कोकोनट ऑयल, मिस्ट्रिक एसिड काउ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। देन फिर तुम्हें पाल्मिटिक एसिड सुना ही होगा, दैट कंपाउंड्स मीट। अब आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इसमें सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड में तो डबल बॉन्ड था ही नहीं, ठीक है। और उसमें आपने देखा डेयरी प्रोडक्ट्स वाले आ गए, मीट वाला आ गया, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड में 2 पढ़े थे, एक पढ़ा था म्यूफा दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक पढ़ा था प्यूफा दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो मतलब हो गया सिंगल, ठीक है। और अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है। लोअर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लेस वल्नरेबल टू लिपिड पर ऑक्सीडेशन, प्रोमोट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है पाल्मोटिक एसिड एंड ओलिक एसिड। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसमें, मोनो के बाद में हम लोग आ रहे हैं किसमें, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इट हैज़ मोर देन 1 डबल बॉन्ड, पॉली है तो डबल बॉन्ड भी बहुत सारे होंगे। प्रोटेक्टिव अगेंस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, more vulnerable to the lipid peroxidation, mostly found in the vegetable oil except in the fish oils, and it is based on position of double bond, ठीक है। N3 है, N6 है, N9 है, कौन सा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। अब N3 फैटी एसिड्स क्या है, फर्स्ट डबल बॉन्ड फ्रॉम मिथाइल एंड एग्जिस्ट एज 3rd CC बॉन्ड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं ALA दैट इज अल्फा लिनोलिक एसिड, EPA दैट इज इकाइकोसा पेंटोइक एसिड और DHA मतलब डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। Biological effects of these largely mediated by their interaction with the omega-6 fatty acid, and they have in vitro and inflammatory एक्टिविटी। सोर्स इसका क्या होगा, फिश हो गया, चिया हो गया, कीवी फ्रूट हो गया, फ्लेक्स हो गया। और RDA इसका बताया है 650 मिलीग्राम जो अलाउंस है। फिर आ गए हम नेक्स्ट दैट इज N6 फैटी एसिड, ठीक है। फर्स्ट डबल बॉन्ड फ्रॉम द मिथाइल एंड एग्जिस्ट एज 6th CC बॉन्ड। इसमें एग्जाम्पल कॉमन वाले हैं जो सुने हैं, लाइनोलिक एसिड, एरिकडोनिक एसिड, ठीक है। They are better in supporting your dermal integrity, renal function, parturition and help in the production of icosanoids, ठीक है। जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, प्रोस्टासाइक्लिन्स हो गए, थ्रोम्बैक्सिन्स हो गए और ल्यूकोट्राइन्स हो गए, ठीक है। फिर हम आते हैं फंक्शंस पे, N6 की बात कर रहे हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, व्हीकल फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, सपोर्ट योर विसरल ऑर्गन्स, इंसुलेशन, पैलेटेबिलिटी, ग्रोथ, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड डिक्रीज द प्लेटलेट एडेसिवनेस। फिर वैस्कुलर हीमोस्टैसिस, किडनी फंक्शन, सेक्रीशन इन द स्टमक, GI मोटिलिटी, लंग फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, बाइल एसिड्स एक्सेट्रा। अब एक चीज़ हमने हमेशा पढ़ी है, ये स्कूल में भी पढ़ते थे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स, नाम तो एसेंशियल है बट दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। केमिकली दे आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्यूफा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आ गया लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड एंड एरिकडोनिक एसिड। डेफिशिएंसी से क्या होगा, एसेंशियल फैटी एसिड बॉडी में तो बन नहीं रहा है, ठीक है, पर है ज़रूरी क्योंकि नाम एसेंशियल है। तो डेफिशिएंसी से होगा इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इंक्रीज BMR, हाई फॉस्फोलिपिड टर्नओवर एंड फ्रेनोडर्मा, टोड लाइक हार्ड स्किन हो जाती है, ठीक है। अब लाइनोलिक एसिड का जो डाइटरी सोर्स है वो क्या है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, ठीक है,
फिर आपका ये सोयाबीन ऑयल हो गया। अरेकिडोनिक एसिड में आपके नॉन वेजिटेरियन मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, मीट, एग्स एंड मिल्क। और लाइनोलिक एसिड में आता है सोयाबीन ऑयल, ठीक है। अब विजिबल एंड इनविजिबल फैट्स क्या है? विजिबल आर दोज दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, उनको नेचुरल सोर्स से आपने अलग कर लिया और निकाल लिया। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, मलाई इकट्ठी करते गए, उसको फिर गरम किया, घी निकाल लिया, ठीक है, कुकिंग ऑयल्स हो गए। नेचुरल तो वो मलाई के अंदर ही था ना घी, आपने उसको सेपरेट करके निकाला, ठीक है, तो वो हो गया विजिबल कि हमने उसको सेपरेट कर दिया नेचुरल सोर्स से। ईजी टू एस्टिमेट देयर इनटेक। इनविजिबल फैट्स दोज विच आर इनविजिबल टू द नेकेड आई, जो कि दिख ही नहीं रहे हैं नेकेड आई को। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द इनटेक, ठीक है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन is from invisible fats, rice and wheat 3%, ज्वार 4%, बाजरा का भी है 6.5%, ठीक है। फिर हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? सबको पता है हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। तो लिक्विड ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फैट अंडर कंडीशंस ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। वनस्पति घी और वेजिटेबल ऑयल, डेफिनेशन बहुत बार पूछते हैं वाइवा में, तो इसलिए हमें पता रहना चाहिए कि जो लिक्विड ऑयल्स रहते हैं वो सेमी सॉलिड या सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर पे। किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। वनस्पति या वेजिटेबल घी ऐसे ही बनता है। अनसैचुरेटेड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। फिर असेंशियल फैटी एसिड कंटेंट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। घी लाइक कंसिस्टेंसी कीपिंग क्वालिटी इन द हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। फिर फोर्टिफाइड विद 2500 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए, 175 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी पर 100 ग्राम्स, ये बताया गया है। फिर ट्रांस फैटी एसिड एक टर्म दिया है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, adopt saturated fatty acid configuration। फिर partial hydrogenation used to increase the shelf life of PUFA, more atherogenic than the saturated fatty acid and increases the risk of coronary artery disease, ठीक है। ये सब सोर्सेज हैं ट्रांस फैटी एसिड के। सबको सारे सोर्स ही पसंद होंगे, ठीक है, बट दे आर दी सोर्सेज। फिर रिफाइंड ऑयल्स की बात करेंगे तो रिफाइनिंग यूजली डन बाय द ट्रीटमेंट विद स्टीम, अल्कली एक्सेट्रा। इट इज डन मेनली टू रिमूव द फ्री फैटी एसिड्स एंड द रैंसिड मटीरियल। नो चेंजेस इन द सैचुरेटेड फैटी एसिड कंपोजिशन एंड इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड द टेस्ट ऑफ द ऑयल्स। एंड ऑब्वियसली कितना ज़्यादा रिफाइन होगा उतना ज़्यादा कॉस्टली होगा। फिर ये डिफरेंट इसमें लिपिड प्रोफाइल की डिफरेंट आपकी जो रेफरेंस वैल्यू है वो दिए गए हैं लिपिड प्रोफाइल के, ठीक है। टोटल लिपिड प्रोफाइल की जो रेंज है वो 400 to 600 है। टोटल कोलेस्ट्रॉल इज बिटवीन 150 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। LDL 80 to 150 दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 30 to 60। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन 20 to 40। ट्राइग्लिसराइड 75 to 150। फॉस्फोलिपिड 150 to 200 और फ्री फैटी एसिड्स 5 to 15, ठीक है। सब मिलीग्राम पर डेसीलीटर में है। और ये जो पूरे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये यदि डिरेंज्ड होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब आपके बॉडी में फैट ज़्यादा है एंड इट विल फ्यूचर में बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस हैं एंड मोस्ट कॉमनली इट विल इफेक्ट द हार्ट एंड कैन लीड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एक्सेट्रा। तो इसलिए ये सारे पैरामीटर इसी रेंज में हो तो ज़्यादा अच्छा है। और बेसिकली HDL वाला जो रहता है वो प्रोटेक्टिव रहता है और LDL वाला जो है, ठीक है, वो हानिकारक रहता है, ये भी हमें पता है। और इस पूरी जांच को हम कहते हैं, ब्लड टेस्ट में पता लगता है लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। तो यदि किसी की बॉडी में फैट बढ़ रहा है या कोई और प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं, अभी हम आगे चल के देखेंगे, तो हमें लिपिड प्रोफाइल कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ दीज पैरामीटर्स नाउ एंड ऑलवेज, ठीक है।
नाउ सी व्हाट आर द फैट्स एंड द डिजीजेस। सबसे नंबर 1 पे ओबेसिटी, डाइट कंटेनिंग मोर देन द नीडेड एनर्जी लीड टू प्रोलॉन्ग पोस्ट प्रैंडियल हाइपरलिपिडीमिया होता है। की रिस्क फैक्टर in the natural history of chronic and non-communicable diseases. Now, coronary heart disease. There is a triangular relationship between the habitual diet, blood cholesterol, lipoprotein level and the CHD. Serum cholesterol concentration is an important risk factor for the incidence of coronary heart disease at level more than 220 milligram per deciliter. LDL कोलेस्ट्रॉल बताया था हानिकारक होता है, इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द CHD. VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये कराएगा प्री मेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज. HDL प्रोटेक्टिव है, ठीक है, और इसका लेवल शुड बी मोर देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. इसका कम है तो वो भी नुकसानदायक है, ठीक है. क्लिनिकल गोल फॉर प्रिवेंशन क्या है? टोटल कोलेस्ट्रॉल अपॉन द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन रेशो शुड बी लेस देन 3.5 एंड बेटर प्रिडिक्टर्स आर एपोलाइपोप्रोटीन बी एंड एपोलाइपोप्रोटीन ए. ठीक है, एपोलाइपोप्रोटीन बी वाला जो रहता है वो LDL ही है और एपोलाइपोप्रोटीन ए आई जो रहता है दैट इज HDL. ठीक है. देन फ्रेनोडर्मा हमने बात की थी, ये भी हो सकता है. हार्ट डिजीज याद रहेगा, ओबेसिटी याद रहेगा. फ्रेनोडर्मा टोड लाइक स्किन, ठीक है. हॉनी पैपुलर इरप्शंस ऑन द पोस्टीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लिम्स, बैक्स एंड बटक्स. इट कैन अकर due to the deficiency of essential fatty acids. Reported in Kerala, Karnataka and Gujarat. ठीक है. Cured rapidly by the administration of linseed oil or safflower oil which are rich in essential fatty acid along with the B complex. ठीक है. फ्रेनोडर्मा हमेशा किससे होता है? Lack of essential fatty acids. ठीक है, या deficiency of essential fatty acid. Then next is the breast cancer. Dietary fat have been suggested to increase the incidence. Studies failed find a strong correlation. Colon cancer हो सकता है. High cholesterol intake in the red meat enhances the secretion of bile acids by liver, which may be in turn converted into potential carcinogens by the intestinal bacteria. Low fat, high fiber diet is the only prevention. ठीक है. फिर नेक्स्ट आ रहे हैं चॉइस ऑफ कुकिंग ऑयल. ठीक है, अब ये रेशो दिख रहा है आपको, प्यूफा अपॉन सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अपॉन सैचुरेटेड का रेशो होता है 0.8:1. फिर एग्जाम्पल दिया है लाइनोलिक एसिड अपॉन N6 जो पढ़ा था अपॉन लाइनोलिक एसिड N3 5:10. इन सीरियल बेस्ड डाइट्स इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द अल्फा लिनोलिनिक एसिड intake, reduce the quantity of linoleic acid obtained from the vegetable oil. Choose variety of oils. ठीक है, एक तो ये कर सकते हो कि अलग अलग वेराइटी का यूज़ कर रहे हैं. दूसरा कर सकते हैं मिक्स 2 or more oils of different composition. किसमें प्यूफा भी है, किसमें म्यूफा भी है. ठीक है, हर कंपोजिशन का हम मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं. गुड चॉइस क्या होता है? इक्वल मिक्सचर ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल with groundnut oil and occasional supplementation with the mustard oil. Mustard oil is not good choice as the sole cooking medium. हमेशा मस्टर्ड में बनाना भी हानिकारक है या खतरनाक है, पर कुछ स्टेट्स में it is followed, so we can't help it. Promote consumption of wheat, bajra, black gram, green leafy vegetable, fenugreek. Should not take total fat-free diet. Deficiency of essential fatty acid, fat-soluble vitamin deficiency. Very low fat diet may reduce HDL cholesterol level. Fat requirement देख लेते हैं लास्ट में. That is the WHO के according only 20 to 30% of total energy should be provided by the fats. At least 50% of the fat intake should consist of vegetable oils rich in the essential fatty acid. और ICMR के अकॉर्डिंग देखेंगे not more than 20% of the total energy intake through the fat. ठीक है, फिर ये इन्होंने बताया है कि कितना कितना किस किस को लेना है. अडल्ट मैन एंड वुमेन में 20 ग्राम्स पर डे,
ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग में 30 to 45, फिर ओल्डर चिल्ड्रन में 22 ग्राम्स पर डे, और यंग चिल्ड्रन की बात करेंगे तो 25 ग्राम पर डे। ठीक है, अब डाइटरी गोल्स क्या हैं? अ डाइटरी फैट शुड बी लिमिटेड टू अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए? 15 to 30% ऑफ द टोटल इंटेक। सैचुरेटेड फैट का देखेंगे, शुड कंट्रीब्यूट नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल एनर्जी। Excessive consumption of refined carbohydrate should be avoided. Sources rich in energy such as fat and alcohol should be restricted. Salt intake should not be more than 5 grams a day. Protein should be account for approximately 10 to 15%. ठीक है, फैट का बताया 15 to 30%, प्रोटीन 10 to 15%, सैचुरेटेड 10%। फिर आपको ये जो फैट्स हैं, अल्कोहल हैं, इन सबको अवॉइड करना है, कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना है, और सॉल्ट इनटेक 5 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विथ इट। आज हमने इंट्रोडक्शन देखा और हमने स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग विद द फैट्स। नाउ इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस वी आर गोइंग टू कवर all the topics. I hope you understand the lecture. Please go through the MCQs, right? Thank you. Have a nice time.